جی ناظرین، آج دو جو ڈسٹرکٹس ہے خیبر پختونخوا کے، ایک ہے کرم، ضلع کرم، اور دوسرا ہے لکی مروت۔ اس وقت اگر کرم کے جو حالات ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے جو ہے وہ خراب ہے، اور ابھی وہاں پہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ یہ حالات ہے کیا، اور لوگوں کی کیا رائے ہے سیکیورٹی فورسز کے بارے میں، یا حکومت کے نیت کے بارے میں کیا رائے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ کیا واقعی کرم کو خالی کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ملٹری سینٹر بنانے کی کوئی تجویز ہے؟ اس پہ بات کریں گے، جو کہ عام لوگوں کی ایک پرسیپشن ہے۔ دوسرا ہے کہ لکی مروت سے جو ریسنٹلی جو ویژول آئے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں نے مسلح بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ کیوں کی ہے؟ نمبر ون، یہ کون سا علاقہ ہے اور لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، اور وہاں پہ جو عسکریت پسند ہے ان کا کیا کردار ہے لکی مروت کے واقعے میں اور کرم کے واقعے میں۔ ان دو موضوعات پہ آج بات کریں گے۔ پہلا ہے کرم کا جو مسئلہ تھا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو یہ ایک چھوٹا مسئلہ تھا کہ زمین کی ڈسپیوٹ تھی، شاملات کی ڈسپیوٹ تھی، کہیں سے شیعہ کے قبضے میں ہے، کہیں سے سنیوں کے قبضے میں ہے، لیکن یہ افراد تک محدود تھی۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اس پہ جرگے نے فیصلہ کیا، لیکن انتظامیہ نے وہ فیصلے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا گیا، اور اس وقت جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو ہے اس مسئلے نے لوگوں کی جانیں لی ہے، اور اتنے زخمی بھی ہوئے ہیں، اور تقریباً گزشتہ 3-4 مہینے سے قحط کا جو 5-6 لاکھ کے قریب آبادی ہے، جو شیعوں کی بھی ہے اور سنیوں کی بھی ہے، وہ اس وقت ان کو قحط کا سامنا ہے۔ پہلے یہ ایزیلی مقامی پولیس یا مقامی انتظامیہ اس مسئلے کو حل کر سکتی تھی، لیکن انہیں قوم پہ چھوڑا۔ یہ ہمارے حکومت کا یہ بڑا ایک عجیب سا ایک ہے کہ فیصلہ جی قوم امپلیمنٹ کرے، تو آپ کس لیے ہیں؟ پولیس کس لیے ہے؟ انتظامیہ کس لیے ہیں؟ ادارے کس لیے ہیں؟ نمبر ون۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بڑھتا گیا، اور لوور کرم جو زیادہ تر شیعوں کا علاقہ ہے، اور اپر کرم جس میں زیادہ پاڑا چنار، جس میں لوور کرم میں سنی زیادہ ہے، اپر میں شیعہ زیادہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ایک گاؤں سنیوں کا ہے، دوسرا شیعوں کا ہے، تو یہ جو حالات ہے ان سے سنی اور شیعہ دونوں متاثر ہے، اور دونوں میں جو لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں، میجارٹی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، وہ اس وقت یرغمال بنے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب حالات بہت خراب ہوئے، اور بگن میں کانوائے پہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ بوشہرہ کا واقعہ ہوا، یہ جگہ جگہ پہ واڑ، شلوزان وغیرہ یہ جو واقعات ہوتے رہے، پھر اس میں ایک قومی جرگہ ہوا، حکومت بھی ساتھ تھی، سیکیورٹی اداروں کے سینئر افسران بھی تھے۔ اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ کرنا کیا ہے، بنکرز کو ختم کرنا ہے، ان علاقوں کو کلیئر کرنا ہے، روٹس کو کلیئر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب فیصلہ ہوا تو فیصلہ امپلیمنٹ کس نے کرنا تھا؟ حکومت کے ہاتھ میں کاغذ دی گئی، حکومت نے کہا جی یہ قوم امپلیمنٹ کرے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ قوم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتی ہے، اور ایسے حالات میں جب شیعوں کے علاقوں میں اور سنیوں کے علاقوں میں جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، وہاں پہ فاطمیون ہے، زینبیون ہے، یا دیگر 3-4 تنظیمیں ہیں، جس نے رپورٹس کے مطابق، مقامی لوگوں کے مطابق شیعہ آبادی کو یرغمال بنایا ہے۔ اسی طرح سنیوں کے علاقے میں TTP ہے، دیگر جو گروپ ہے، جو عسکریت پسند گروپ ہے، اس نے سنیوں کے علاقے کو جو ہے یرغمال بنایا ہے، لیڈران کو۔ پھر بھی یہ ہے کہ شیعہ کا جو ہے کمپیریٹیولی ان کا اتفاق اچھا ہے، مطلب ہے کہ وہ بات مانتے ہیں۔ جب جرگہ ہوا اور اس میں جو انجمن حسینیہ ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے، جب فیصلہ ہوا تو سارے رپورٹس کے مطابق جو میں نے جتنے گیدرڈ کیے، شیعوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن سنیوں میں یہ تھا، اسپیشلی جو لوور کرم کے تھے، جن مشران نے دستخط کیے، ان کی حد تک جو ہے نا شروع ہونا، لوگ ان کے پیچھے باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور بجائے ان کو یرغمال قسم کا بنایا گیا۔ تو
حالات ख़राब हो गए और वही जो बगन चत और ये जो दीगर इलाके हैं 3-4 जो गांव हैं जहां पे अभी ऑपरेशन शुरू हो रहा है, वहां पे बाकायदा तौर पर एक लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन जो है वो अभी लॉन्च हो रहा है। वहां से जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली बगन में हमने देखा कि कॉन्वॉयस पे हमले होते रहे। अब सूरत हाल ये है कि जरगे के बाद तो बंकर्स तोड़ना शुरू हो गए। कुछ बंकर्स मतलब है कि ख़त्म हो गए, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में, अब ये हज़ारों की तादाद में मोर्चे और वो भी परमानेंट कैसे बने, ये भी सवाल है। पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत वो सारा तमाशा देख रहे थे। उस दिन अफ़गान सफ़ीर ने जो लीक्स आया उसमें ये कहा है कि कोरम में जो हालात है, फ़ौज, पुलिस और हुकूमत ये सिर्फ स्पेक्टेटर्स है, तमाशा देख रहे हैं और लोग मर रहे हैं, मुकामी लोग चीख रहे हैं। और बात मेरे ख्याल में उनकी 100% ठीक थी। अब ये हुआ है कि ये जो 3-4 गांव है वहाँ पे अब ऑपरेशन शुरू किया गया है, शुरू हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर सुन्नियों के इलाके और ज़्यादातर जो है उनको खाली भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी घर में 1 या 2-3 बंदे जो है वो नहीं निकल रहे। अभी लोग क्यों नहीं निकल रहे? कुछ मुकामी अफवाहें हैं या जो भी है, उनमें से टॉप पे जो है वो ये है कि कुरम को खाली किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा ये है कि कुरम से एक फ़िरक़ों को निकाला जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि ये हो क्यों रहा है। लोगों का ख्याल ये है, एक तबका तो ये समझता है कि शायद यहाँ पे किसी बैरूनी ताकत के लिए फ़ौजी अड्डे या फ़ौजी जो सेंटर्स है वो, क्योंकि बड़ा स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है कुरम है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा जो परसेप्शन है वो यही है कि यहाँ पे मादनियात बहुत ज़्यादा है, जिसमें गोल्ड और जो ज़्यादा कीमती प्रेशस जो दीगर है मादनियात है वो पाए जाते हैं, उस पर कब्ज़े के लिए। तो अगर हुकूमत ने ये काम करने तो मेरे ख़्याल में तो इस तरह भी हो सकता है बग़ैर उसके। तो अभी मुकामी लोग बड़े सस्पिशियस है हुकूमत के उस पर। सवाल ये है कि लोगों से मैंने सुना कि अगर हुकूमत चाहे तो ये 1 घंटे 2 घंटे में ये हो सकता है। और वो मिसाल पेश कर रहे हैं 1987 के फसादात के। जब 1985 में जंग शुरू हुई कुरम में, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि एक लड़ाई थी और उसमें लोग भी ज़्यादा कत्ल हुए और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। उन्हें कहा कि 3 घंटे में उस मसले को फ़ौज ने आके मसले को हल किया था। 3 गोले फायर किए जब पता चला कि हुकूमत सीरियस है। सीरियस का मतलब है कि हुकूमत संजीदा है, इदारे संजीदा है। अभी तक लोगों का ख्याल है कि कुरम में अमन के हवाले से हुकूमत या रियासती इदारे संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो ये मसला हल कर लेते। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक ऐसा इलाका जिसमें ना दहशतगर्दी थी, ना वहाँ वो बढ़ते बढ़ते एक छोटे से वाक़े से अब वहाँ पे हमने मिलिट्री को मूव करना होगा, वहाँ पे हमने एयर इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पे हमने हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल करनी होगी। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में न इसकी ज़िम्मेदार फातिमा यून है, न ज़ैनब यून है, न TTP है, ना कोई दीगर जो अस्करी तंजीमें हैं। इसके ज़िम्मेदार जो है मुकामी इंतज़ामिया, पुलिस, फ़ौज इदारे के मशरान और सिविल इंतज़ामिया के मशरान है कि हर एक ने मिट्टी पाव वाली बात यह कि बस यार मेरा टेनओवर है, साल है, 2 साल है, ये ख़त्म हो जाए, बाकी देखेंगे। और हालात यहाँ तक पहुँच गए। मेरे ख़्याल में अगर सवाल पूछना है तो इन इदारों से पूछना होगा। और ठीक अफ़गानिस्तान ने जो मैंने पहले भी कहा कि अफ़गानिस्तान ने जो पॉइंट आउट किया है कि कुरम में पाकिस्तानी हुकूमत, रियासती इदारे सब जो है सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और सैकड़ों की तादाद में, अभी तक 300 से 350 तक तादाद पहुंच गई कि इसमें लोग हलाक हो चुके हैं। और इसी तरह 3-4 महीने से मुकम्मल इलाका कट ऑफ है, कहत की सूरत हाल है। तो ये अब सूरत हाल यही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कुरम के हवाले से। तो ये जो अभी 4 गांव हैं जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पे ये ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। दूसरा मसला लकी मरवत। लकी मरवत के बारे में बहुत ज़्यादा जो है एक कंसर्न है, और स्पेशली जब वहाँ से वो मुसल्लह लोग निकल आए थे और पुलिस का रास्ता रोका था।
अगेन इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, मतलब एक SHO लेवल की मतलब मसले को हल कर सकते थे। ये है तजोड़ी का जो सब डिवीज़न है, वहाँ पे एक तंजीम है जिसको मरवत बैटनी कौमी इत्तेहाद कहते हैं, और ये मरवत बैटनी कौमी तहरीक जो है, इनके जो चेयरमैन है उसका नाम है इनामुल्लाह, जो मुकामी स्कूल में अरबी पढ़ाते हैं, अरबी के उस्ताद है और ये सरकारी टीचर है। ये इनके चेयरमैन है। उन्होंने हुकूमत से, इस तहरीक ने 2 मुतालबात किए। मुतालबात टेक्निकली 3 थे, लेकिन 2 मेन मुतालबात जो है उनमें से एक ये है कि मरवत कैनाल जो है, यानी मरवत नहर जो है, जो कि तजोड़ी यहाँ पे 40-50 छोटे छोटे गांव है उनके ज़मीनों से गुज़रती है, उसमें पानी जो है छोड़ा जाए। कहाँ से? बारानी डैम से। पहला मुतालबा तो उनका यही है कि बारानी डैम से मरवत कैनाल में पानी छोड़ा जाए, नंबर 1। दूसरा मुतालबा ये है कि लकी मरवत, स्पेशली जो तजोड़ी या बैटनी, ये जो इलाके हैं जो कि ज़्यादातर FR बैटनी और फिर जो जानी खेल का एरिया है, जो ऑलरेडी वो भी बड़ा डिस्टर्ब एरिया है, उन इलाकों में अमन किया जाए। अभी उन्होंने ये बताया कि इनमें से कौन सा ऐसा मुतालबा है जो काबिल मज़म्मत है। दोनों, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बारानी डैम में पानी नहीं है, बारिशें नहीं हुई है, तो इसी वजह से हम पानी नहीं दे सकते। अमन के हवाले से उसका तो मौक़िफ़ है कि हम भी चाहते हैं कि अमन कायम करेंगे, लेकिन अमन कायम हो नहीं रहा है। अब सूरत हाल जो बनी हुई ये है कि लकी मरवत में जितने गैस और ऑयल फील्ड है, वहाँ से जितनी गाड़ियाँ निकलती है, जितने टैंकर्स है, दीगर गाड़ियाँ जिसमें ऑयल एंड गैस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो सैकड़ों की तादाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों से उनको ब्लॉक किया गया है। और इंतज़ामिया हमें जो बताया जा रहा है, कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हालात को कंट्रोल करे। अभी आगे क्या हो रहा है, ये बड़ा मसला है। आगे ये हो रहा है कि ये जो जानी खेल का इलाका है, FR बैटनी, यहाँ पे जो है ना अस्करियत पसंदों की बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंस है। ये जो FR बैटनी है, स्पेशली ये जो तजोड़ी के साथ जो अटैच है, यहाँ पे एक जरगा भी मुकामी तालिबान ने किया है। जो मुकामी तालिबान जो TTP के साथ उनका ताल्लुक़ है, मशरान का एक जरगा बुलाया, उनको एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप अपने इस इलाके के जितने बच्चे फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, सरकारी इदारों में हैं या खासदार फोर्स में हैं, उन सब को निकाला जाए, वरना हम आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेंगे। मतलब है कि इतना इन्फ्लुएंस है उनका। अब अगर हुकूमत जो है, और फिर TTP ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान भी जारी किया कि हम मरवत बैटनी कौमी तहरीक के मुतालबात जो है हम उनके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन वही जो है कि हुकूमत वगैरह वगैरह जिनके लिए वो जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। तो अभी अगर ये मसला जो है लकी मरवत का मसला, जो कि एक छोटा मसला है, अगर ये भी इसी तरह बढ़ता गया तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कुरम हमारे हाथ से निकल रहा है और फिर लोगों की अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं, फ़ौज के बारे में, हुकूमत के बारे में, पुलिस के बारे में और अमरीकी अड्डों के बारे में, मादनियात के बारे में, तो कल कला जो है लकी मरवत में भी यही होगा। यही जो तजोड़ी से एक 30-40 गाँवों से जो तहरीक उठी है, ये आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि पूरे लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट को ले ले, पूरे करक डिस्ट्रिक्ट को साथ, फिर कोहाट वगैरह। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग, वाकई तमाशा देख रही है, और ये तमाशा देखते देखते जो है ना सैकड़ों लोगों की जानें भी चली जाती है। फिर आपने मिलिट्री को मूव करना पड़ता है, पूरे इदारों को वो करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो खुदारा इन मसाइल को सीरियस ले। ये जो हमारी दोनों अस्करी इदारों में जो लोग बैठे हैं या हमारी इंतज़ामिया में जो लोग बैठे हैं, पुलिस में जो लोग बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं? एक छोटे मसले को देख देख के तो वही हर एक DPO का, हर एक DC का, हर एक कर्नल का, हर एक ब्रिगेडियर का यही मौक़िफ़ होता है उनके जहन में कि भाई मैं तो 2 साल के लिए आया हूँ, अभी आगे मैंने क्या करना है वो छोड़ देना। वो नहीं, पहले ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर होता था, लेकिन वो संजीदा होता था, ईमानदार होता था, अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होता था। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे जितने भी ऑफिसर जिस भी इदारे से जाते हैं, वो ये कहते हैं जी जरगे ने फ़ैसला किया, अभी कौम इम्प्लीमेंट करे। तो अगर कौम ने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर बेहतर है कि पुलिस, फ़ौज और हुकूमत वहाँ से निकल जाए।